हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 25। आज जो हम करेंगे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड इन इंडिया, यानी भारत परिवहन संचार एवं व्यापार। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चे के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो। हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और इसमें हम आज हर एक विषय पे, हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है और इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर जो है विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। Pipeline transport is the most important for modern generation here. Pipeline transport has been to develop it is recently in India. It is the most conventional mode of transport for minerals, oil, petroleum product and the natural gas. Pipeline is a connected oil and natural gas filled with the refiners and their main market center. Now the solid and also began to transport it through the pipeline after the converting them into the slurry. There is important, and there is a contains the advantage of pipelines over the mode of transport. Pipeline can be laid through their difficult terrains as well as underwater. Initially, cost of lining the pipeline is high, but the subsequent cost for maintenance and operation is low. It is ensure the steady supply and the minimize a transparent losses and the delay. And the next year, a pipeline operation involves very low consumption of energy. There are some limitations of pipeline transport, such as the capacity of pipeline cannot be increased once it is a area. The security of pipeline is a container area and the detect of the leakage is difficult. Petroleum pipeline is Assam connect to the field with the oil refineries of the Assam and Bihar. Pipeline between the Kandala and the Mathura is the longest pipeline, is a 1,220 kilometer. There is the most important here. The Kandala and the Mathura is the longest oil pipeline. There is a several pipeline in the Gujarat and Maharashtra connected to the oil field and refineries and marketing center. The longest gas pipeline has been to add from to the Hazira, Gujarat to the Jadavpur is a UP and the Vada Vijaypur is MP. And this HBJ pipeline is a 1,730 kilometer in the length and supply the natural gas to the 6 fertilizer plant and 2 thermal power plant. Pipeline transport has reduced their burden of the railways and significant owing their advantage is a more pipeline has been to the proposed for a smooth supply of oil and natural gas here. The gas fired to the thermal power station are began set up in a distance and remote part due to the facility of pipeline transport here. पाइपलाइन, देखिए पाइपलाइन परिवहन कहते हैं, हमने वहाँ पर जो है कहते हैं हम वायु परिवहन, जल परिवहन और सड़क परिवहन के विषय में बात किया। अब पाइपलाइन परिवहन क्या होता है? पाइपलाइन परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं इससे कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना
बड़ा ही सरल होता है। इसलिए भारत में पाइपलाइन की जो है आने वाला समय में बहुत ही बड़ा फ्यूचर है। तो इसी पाइपलाइन के परिवहन के विषय में हम यहाँ विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे और हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा होगा तो आपको बना रहना पड़ेगा त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। तो पाइपलाइन परिवहन के विषय में यहाँ पर जो बात आई है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत में पाइपलाइन परिवहन का प्रचलन अभी हाल ही में शुरू हुआ है, यानी पहले नहीं था यहाँ पर। क्योंकि भारत में पाइपलाइन की जब इतनी अच्छाई देखी गई सभी देशों में, तो भारत में भी इसको इंट्रोड्यूस की गई। तो पाइपलाइन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं खनिज तेल, पेट्रोलियम के अन्य तरल पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन क्षेत्रों से सीधे जो तेल शोधक संयंत्रों तक जो है विक्षेपण केंद्रों द्वारा सुविधापूर्वक पहुंचाने में पाइपलाइन परिवहन भरोसेमंद साधन है। अब कहते हैं ठोस पदार्थ को अभी भी अतरल अवस्था में बदलकर पाइपलाइनों में परिवहित किया जाता है। तो पाइपलाइन जो है बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका है। कहते हैं अगर हम कोई भी ट्रक्स में जो है लेके जाते हैं पेट्रोल या डीजल, तो उसके कई खतरे होते हैं। लेकिन अगर हम पाइपलाइन के थ्रू परिवहन करें तो ये काफ़ी आसान और सरल हो जाता है। आज सिर्फ पेट्रोल का ही नहीं परिवहन किया जाता है, देखा जाए तो एलपीजी गैसों का भी पाइपलाइन के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई शहरों में ये अपनाया भी गया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया है। दूसरे परिवहन साधनों की तुलना में पाइपलाइन परिवहन के कुछ विशेष लाभ भी हैं। पहला लाभ तो यही दिखाता है कि पाइपलाइनों के दुर्गम, कठिन, ऊबड़ खाबड़ भूभागों तथा मार्ग में पड़ने वाले जलाशयों के पानी के नीचे से भी बिछाया जा सकता है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, जहाँ पर सड़कें नहीं बन सकती है वहाँ पर भी पाइपलाइन को बिछाना बहुत ही सरल होता है। यानी जहाँ पर दुर्गम, कठिन, ऊबड़ खाबड़ भूभाग भी हो, पानी भी हो, फिर भी जो है पाइपलाइन को बिछाना बहुत ही सरल है, इसलिए इसका लाभ बहुत ही है। दूसरी बात पे अगर बात करें तो पाइप जो है बिछाने की आरंभिक लागत बहुत अधिक होती है, क्योंकि आरंभिक में हर चीज़ जो है कॉस्टली होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहते हैं पाइपलाइन बिछाने में आरंभिक में बहुत ही लागत लगती है, लेकिन बाद में इसके रखरखाव की लागत बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर अगली लाभ की बात करें तो कहते हैं पाइपलाइन परिवहन द्वारा पदार्थों की आपूर्ति अनवरत रूप से सुनिश्चित होती है और इस परिवहन साधन में तरल पदार्थों के जो है बाहर अंतरण प्रक्रिया में समय भी बहुत बचता है तथा परिवहन के पदार्थों का नुकसान भी कम देखने को मिलता है। इसलिए जो है पाइपलाइन परिवहन इतना उत्तम है। पाइपलाइन परिवहन में ऊर्जा की खपत भी कम होती है, क्योंकि इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसलिए पाइपलाइन जो है बहुत ही सरल और सुलभ माध्यम है। कहते उपयोग लाभों के बावजूद इस परिवहन प्रणाली कुछ सीमाएं भी है, जैसे एक बार निश्चित व्यास की पाइपलाइन डाल दी जाए तो फिर उसकी परिवहन क्षमता भविष्य में बढ़ाई नहीं जा सकती। तो जनरल सी बात है, ये तो आम बात है कि जैसा आप पाइपलाइन डालिएगा वैसा ही उतना ही अमाउंट में जो है परिवहन होगा। अगर आप फ्यूचर को लेके और देख के चलते हो तो आपको ऐसे पाइपलाइन बिछाना चाहिए जो आज भी काम आ जाए और आने वाला फ्यूचर में भी उसका उपयोग जो है ख़राब ना हो। तो ये बात जो है इंटेलिजेंसी के ऊपर आती है। अगर सरकार इन पाइपलाइन को जो है प्रायोरिटी दे रही है, आगे बढ़ा रही है, तो उनको फ्यूचर को भी लेके चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये जो है बहुत सरल सुविधा माना जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन कार्य होता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में कई क्षेत्रों में जो है ऐसे उपद्रवी लोग भी होते हैं जो इन पाइपलाइन से छेड़छाड़ करके जो है अनावश्यकता जो है अपना लाभ कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सुरक्षा सुनिश्चित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगना भी काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि ये धरती के अंदर रहता है, तो रिसाव का जो है पता लगना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा इसको मुश्किल कहा जा सकता है। असम राज्य के पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों में पाइपलाइनों द्वारा असम तथा बिहार स्थित तेल शोधक संयंत्रों में जोड़ दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कंदाला यानी गुजरात से मथुरा स्थित तेल शोधक संयंत्र तक बिछाई गई पाइपलाइन की लंबाई जो थी 1220 किलोमीटर थी। यानी कंदाला जो गुजरात में है से मथुरा तक जो है पाइपलाइन जो बिछाई गई थी उसकी लंबाई 1220 किलोमीटर थी। सबसे अधिक है क्योंकि ये काफ़ी लंबी है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में भी पाइपलाइन बिछी है जो खनिज तेल के उत्पादन कूपों से सीधे तेल शोधक संयंत्रों को यह जो है विपणन केंद्रों को जोड़ती है। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपलाइनों से भी होती है। कई क्षेत्रों में आप देख सकते हो जहां प्राकृतिक गैस का जो है पाइपलाइनों से परिवहन की जा रही है। भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन जो है
1730 किलोमीटर की है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन जो है 1730 किलोमीटर की है, जो गुजरात के हजीरा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक बिछाई गई है। अब ये यूपीएससी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भारत सबसे लंबी गैस लाइन पाइप कहाँ से कहाँ बिछी और कितनी लंबाई है। तो आपको पता हो गया है कि 1730 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये गुजरात के हजीरा से शुरू होकर जो है जगदीशपुर तक बिछाई गई है, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक बिछाई गई है। यह गैस पाइपलाइन जो है HBJ कहलाती है, यानी इसको जो नाम पड़ा हुआ है HBJ के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा 6 ऊर्जा कारखानों तथा 2 ताप विद्युत केंद्रों को गैस की आपूर्ति की जा रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। पाइपलाइनों के परिवहन में रेलों पर भार ढोने की बढ़ते दबाव भी कम कर दिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले के समय में आप देखते थे कि जो मालगाड़ियाँ होती थी उसमें जो है पेट्रोल डीजल भर भर के जाती थी और कई बार तक दुर्घटना के शिकार भी होती थी और बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता था सरकार को। लेकिन पाइपलाइन परिवहन के कारण क्या हुआ, बहुत ही सुलभ और सरल हो गया है और नुकसान होने की भी चांसेस जो होती है 0 हो जाती है। पाइपलाइन परिवहन के महत्वपूर्ण योगदान के ध्यान में रखकर यह तय किया गया है कि देश में गैस व खनिज तेल की आपूर्ति को अविरक्त बनाए रखने की अधिक पाइपलाइन बिछानी होगी। तो ये जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा है जो कि रखी गई है कि आने वाला फ्यूचर में जो है पाइपलाइन को बिछाना सुनिश्चित किया जाएगा। पाइपलाइन परिवहन व्यवस्था के द्वारा गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने से भारत को दुर्गम क्षेत्रों में भी गैस इंजन पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है और इससे इन उपस्थित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की नई दिशा मिलेगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर एक पॉइंट की बात करें तो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाइपलाइन परिवहन सबसे सुविधाजनक प्रणाली है जिसके द्वारा खनिज तेल व गैस की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।